अगर हमने स्कॉर्पियो के छत में चढ़ा नोटिस जारी किया तो कल्पना सोरेन का नोटिस कहने जारी किए? हेमंत सोरेन रांची में चढ़े स्कॉर्पियो में कहने नोटिस जारी किए? आज नरेंद्र मोदी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, राहुल गांधी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, कन्हैया कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव चढ़ रहे हैं खुला जीप में, कहने नोटिस जारी हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ के डीसी से पूछूंगा, आपके माध्यम से यहाँ के डीसी से पूछेंगे कि आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, 1 घंटा का हेलीकॉप्टर का भाड़ा 1 लाख रुपया है, आप हेलीकॉप्टर में उड़ के आते हैं मैडम और बोलते हैं 2,500 টাকা दीजिए। मैडम जो चश्मा पड़े, ये चश्माटा मुख्यमंत्री वो 61,000 दाम है उसका, 61,000 चश्मार दाम আছে। এই যে মুখ্যমন্ত্রী এই যে হাতে ঘড়ি পরে, ঘড়ি বোঝেন আপনি? কি বলে ঘড়িকে? ঘড়িয়ে বলে না, 2.5 লাখের ঘড়ি বটে। কি জন্য আসছে, কি কাজে আসছে আপনি সবাই জানেন। এখানে এই আপনার ঘাটশিলা বিধানসভা ইলেকশনের সময় বটে। ইলেকশন মানে কি আমরা কে জানবার দরকার আছে, জানতে যাই কি ইলেকশনের মানে কি। ইলেকশনের মানে ভোটের মানে কি আমাদের ক্ষেত্রর, আমাদের গ্রামের, আমাদের জেলার যে সমস্যা, আমাদের রাজ্যের যে সমস্যা, ওই সমস্যার কিভাবে নিদান হবে। আমাদের ক্ষেত্রের সমস্যা কি? বিজলির সমস্যা, সড়কের সমস্যা, জলের সমস্যা, রোজগারের সমস্যা, পড়ালেখার সমস্যা, ইলাজের সমস্যা, খেতিবাড়ির সমস্যা। এই সমস্যার নিদান কিভাবে হবে সেজন্য আমরা ভোট করে, ভোটের মাধ্যমে আমরা একটা এমএলএ এমপির চুনাও করে ওই এমপি এমএলএ বিধানসভার ভিতর, লোকসভার ভিতর যায় নিয়ে আমাদের মুদ্দা, আমাদের সমস্যাকে রাখে কি আমাদের ক্ষেত্রে এইটা সমস্যা আছে, এই সমস্যাকে গভর্নমেন্টকে সমস্যার নিদান করতে হবে। কিন্তু আজকে কি পরিস্থিতি আছে? আজকে আমাদের এমএলএ, আমাদের এমপি আমাদের গ্রামে আসে নাই। যদি ওরা আমাদের গ্রামে আসবে নাই তো কিভাবে আমাদের সমস্যাকে জানবে কি আমাদের সমস্যা কি? ডক্টর আসবে তো ডক্টর হাত ধরে নিয়ে জানবে কি কোথায় ভাই নসে কি আছে, মাথায় কি দর্দ আছে, কি ঘেঁচায় দর্দ আছে। তো সেভাবে अगर এমপি এমএলএ আমাদের ক্ষেত্রে আসেই নাই তো জানবে কি জন্য? তো সেই জন্য আমাদের ভোটের অধিকার বটে কি আমরা ভোটে নিয়ে আপনার এমএলএ এমপির চুনাও করে নিয়ে ওকে ভালো মানুষকে পাঠাবো যে ওইখানে মানে রাঁচির বিধানসভায়, ওইখানে মানে দিল্লির লোকসভায় আমাদের নিজের যে সমস্যা আছে ওই সমস্যার নিদানের খাতির ওইখানে ডিসকাশন করবে, ওইখানে বাতচিত করবে, ওইখানে সংঘর্ষ করে নিয়ে আমাদের সমস্যার সমাধান করবে। আজকে আপনি সবাই জানেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে কি? ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে রক্তর রাজ্য। ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে কি আপনি সবাই জানেন? ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে রক্তর রাজ্য, নির্মলের রক্ত এই রাজ্য, কত মহাপুরুষের রক্ত, অনগিনত মহাপুরুষের বীরের রক্ত এই রাজ্য। আমাদের পূর্বজে দাদা কাকা জেঠা আমাদের লড়েছে রাজ্যের নির্মাণের জন্য। কেনে ভাই কি আমাদের ছেলে, আমাদের ফিউচারের জেনারেশন ওকে ভালো শিক্ষার দরকার আছে, ওদের ভালো চাকরির দরকার আছে, ওরা মান সম্মান দরকার আছে। লেকিন আজকে কোথায় মান সম্মান? আজকে এই রাজ্যে, রক্তর রাজ্যে কোথায় মান সম্মান আছে? আপনি আপনাকে বাতাও কোথায় মান সম্মান আমাদের? আজকে মুখ্যমন্ত্রীর বউ বলছে কি আমি মাসে মাসে 2,500 টাকা দিচ্ছি। এই 2,500 কি হবে? এই 2,500 জন্য কি আমরা ঝাড়খণ্ডের রাজ্যের নির্মাণ করেছি? যদি 2,500 খুব টাকা বটে তো আপনি মুখ্যমন্ত্রী বউকে বলো কি আপনাকে আমরা 2,500 টাকা নেই 5,000 টাকা দিচ্ছে। আপনি এই 5,000 টাকা নিয়ে রাঁচি থেকে এইখানে घाटशिला टेम्पो गाड़ी থেকে আসেন। आइए आप टेम्पो गाड़ी चढ़ के आइए मैडम। अगर 2,500 बहुत कुछ है, अगर 2,500 के लिए हमारे बाप दादा झारखंड बनाए हैं तो आपको हम लोग 5,000 दे रहे हैं। आप टेम्पो गाड़ी में बैठिए रांची में, घाटशिला प्रचार कीजिए। आप हेलीकॉप्टर में आएंगे और गरीब लोग को भाषण देगा 2,500 का। हेलीकॉप्टर भाड़ा को तो जाने अपनी 1 घंटार भाड़ा 1 लाख টাকা। 1 घंटा का हेलीकॉप्टर का भाड़ा 1 लाख रुपया है। आप हेलीकॉप्टर में उड़ के आते हैं मैडम और बोलते हैं 2,500 টাকা दीजिए। मैडम जो चश्मा पड़े, ये चश्माटा मुख्यमंत्री वो 61,000 दाम है उसका, 61,000 चश्मार दाम আছে।
এই যে এই যে হাতে ঘড়ি পরে ঘড়ি বোঝেন আপনি কি বলে ঘড়িকে ঘড়িয়ে বলে না 2.5 লাখের ঘড়ি বটে মানে গরিব লোক এই গ্রামের লোক মূর্খ বটে এই গ্রামের লোক মূর্খ বলছে 2,500 টাকা এই 2,500 জন্য আমাদের পূর্ব ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্মাণ করেছে না এই যে আমাদের ছেলে এই যে আমাদের ভাইরা বন্ধুরা ইয়ার ফিউচার কি হবে এই পড়ালেখার পরে চাকরি কোথায় করবে এই জন্য ঝাড়খণ্ডের নির্মাণ হয়েছে আপনি কি আপনার তো আপনি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী বউ বিধায়ক ভাই বিধায়ক আপনার কি আপনি তো গোটা ঘর গোষ্ঠী বিধায়ক এমপি এমএলএ আছে আপনার কি দরকার আছে তো সেই জন্য বলছে 2,500 টাকা দিচ্ছে আর এখন এই मोदी साहब আসলো तो मोदी साहब आस्था के नाम पे वोट लेने लगे मंदिर बना देंगे राम जी कृष्णा जी भगवान के नाम पे वोट लिए अब हेमंत सोरेन उनकी बहू सिखाती है कि आंसू भाई और वोट लीजिए क्या आंसू से समस्या का समाधान होगा वोट आंसू के लिए मेरी प्यारी बहनों मेरी मासियों काकियों जितने बैठे हैं यहाँ वोट इसलिए नहीं होता कि कोई आंसू भाई और वोट दे वोट होता है मुद्दा के लिए कि जो मेरा मुद्दा पे बात करे जो मेरे मुद्दे को सुने और उसका समाधान करे इसलिए वोट होता है अगर आंसू बहाने से सड़क बन जाती है यदि आंसू बहाने से हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं यदि आंसू बहाने से हमें नौकरी मिल जाती है अब भाई आंसू हम आपको वोट देंगे आप एक व्यक्ति के आंसू में झारखंड के लाखों युवाओं के आंसू को मत भूल जाइएगा आज लाखों युवाओं को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है स्टाइपेंड अपना बुझे ना स्कॉलरशिप যে গভর্নমেন্ট মদত করে পড়বার জন্য কিলে ওইটা স্কলারশিপ ওঠে আপনি ভালো করে পড়ালেখা করো आज लाखों नौजवान को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है उनका आंसू इस आंसू के सामने फीका नहीं पड़ना चाहिए আর মন্ত্রী ঠিক আছে মন্ত্রী যে রামদাস সোরেন ছিল আমাদের বিপক্ষ নাই আছে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি लेकिन दुनिया में जो आया है वो जाएगा जो आए हैं उनको जाना होगा वो अपना जिंदगी ठीक है समय अभी और भी था उनका लेकिन फिर भी एक 60 साल का जिंदगी जिए हैं वो यहाँ 25 साल के नौजवान विदेश में टावर लाइन में मर जा रहे हैं हमारे डुमरी विधानसभा में एक नौजवान उसको सऊदी अरब में गोली लगा है 25 साल का लड़का है सऊदी में गोली लगा है अगर आंसू बहाना है तो 25 साल का नौजवान जो मर गया है उसके लिए बहाया जाए उसको सऊदी में गोली लगा है क्यों लगा है वो नौकरी करने गया था झारखंड में नौकरी नहीं मिला इसलिए तो अगर आंसू बहाना है तो उन नौजवानों के लिए आंसू बहाइए जो 20 साल में विदेश में मर के घर आ रहे हैं 22 साल उम्र है और मर जा रहे हैं किस लिए नौकरी करने गए थे विदेश 25 साल अभी भी बॉडी नहीं आया है पुलिस गोली मारा है ना सऊदी का नियम बहुत टफ नियम है सऊदी अरब में वहाँ गोली लगा है अभी भी उसका बॉडी नहीं आया है आज 1 महीना होने वाला है लगभग हम लोग रोज वहाँ कंपनी से बात करते हैं कि हम यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं बोला एमएलए साहब मैंने वहाँ का कानून बहुत टफ है इंग्लिश में उनको हम बात करना पड़ता है कभी कभी वॉइस मैसेज से बात करना पड़ता है उन लोग से बोलता है एमएलए साहब यहाँ का कानून बहुत टफ है इतना आसानी से बॉडी नहीं जाएगा तो अगर आंसू बहाना है तो ऐसे लोगों के लिए बहाइए आंसू बहाना है तो उन बेरोजगार भाइयों के लिए बहाइए आंसू बहाना है उन किसानों के लिए बहाइए जो साल भर मेहनत करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते आज के यारा बोलছে আমাদের কাছে खजाना नहीं আছে बताइए आप खजाना नहीं है नेमरा गांव क्या हुआ 10 दिन में सरकार मुख्यमंत्री अपना पूरा गांव का तस्वीर बदल दिए 10 दिन पहले जब गुरुजी जिंदा थे गुरुजी 3 बार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 4 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन उस समय तक नेमरा गांव में ठीक से बिजली नहीं था नेमरा गांव में मोबाइल का लोकेशन नहीं पकड़ टावर नहीं आता था नेमरा गांव में बढ़िया सड़क नहीं था आप तो मोबाइल में देखे होंगे गुरुजी को जलाने जा रहा था तो लोग खेत से होके जा रहा था सड़क नहीं था 10 दिन में नेमरा गांव सुधर गया तो क्या झारखंड नहीं सुधरेगा यानी मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं अपना गांव का विकास कर ले चाहते हैं बाकी लोग कहे तो बाकी लोग का वोट कह लेते हैं जाइए उधर वोट मांगिए जहां काम कर रहे हैं वहां वोट मांगिए इसलिए आज हम मानते हैं और आप भी मानते हैं कि एक सीट से कुछ होगा नहीं लेकिन ये एक मैसेज जाएगा पूरा झारखंड में एक मैसेज जाएगा पूरा बिहार में झारखंड के बगल में जो बंगाल है उड़ीसा है वहां भी मैसेज जाएगा कि मंत्री का सीट इन लोग हार गया मतलब काम ठीक नहीं किया था अगर जीत जाएगा तो फिर सीना ठोक के बोलेगा 2,500 में इन लोग को गुलाम बना लिया तो आज ये देखना होगा बिल्कुल माताओं बहनों मायरा मासीरा आपको भी बोलना होगा कि भाई 2,500 हम फ्री में नहीं लेंगे आप उनको दीजिए
जो हमारे भाई बहन, हमारे घर के बच्चे 10 साल मेहनत करके पढ़े लिखे, साइकिल का पेडल मार मार के ठंडा में, गर्मी में, धूप में कोचिंग क्लास गए हैं, जो रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक, मैंने 18, 20, 22 साल का लड़का लोग आंख में चश्मा लगा लिया पढ़ते पढ़ते, आधा बाल पका लिया पढ़ते पढ़ते। उनको नौकरी देने का काम कीजिए, उनको रोजगार से जोड़िए। हम लोग नहीं चाहते 2,500 रुपया। आप अगर इतना ही हमारा चिंता करते हैं तो उनके रोजगार से जोड़िए। सरकार आपकी है, इसीलिए सरकार को चोट देने की आवश्यकता है। और उसके बाद चंपई चाचा, बताइए उनको क्या दुख है? चंपई चाचा मुख्यमंत्री थे, फिर भी उनको बुढ़ाते समय चिंता है कि मेरा बेटा सेट हो जाए, इसीलिए न सीट खड़ा कर दी है बाबूलाल सोरेन को। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे और उनको अपना बेटा का चिंता है, तो आप मुख्यमंत्री नहीं या फिर भी बेटा का चिंता नहीं कर रहे, सोचिए। तो मूर्ख बेवकूफ कौन है समझिए, बेवकूफ जनता है कि नहीं। चंपई चाचा मुख्यमंत्री छिलो, आज के एमएलए আছে, आज के मुख्यमंत्री ना किंतु एमएलए আছে चंपई चाचा। ताओ चिंता करছে নিজের ছেলে, ताओ चिंता करছে নিজের ছেলে। तो भाई जब वो मुख्यमंत्री होके अपना बेटा का चिंता कर रहा है, तो हम लोग तो गांव का गरीब किसान है, हमको तो ज्यादा चिंता करना चाहिए। उनको नहीं करने से भी कम तो कई करोड़ टका उनके पास होगा। कितना करोड़ होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी भी उनको महीना का 2 लाख सैलरी से ज्यादा मिल रहा है, अभी उनको 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है। तो जिस इंसान को 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, उसको बेटा का चिंता है। तो हम लोग तो 10,000 कमा रहे हैं, बेटा लोग का चिंता नहीं कीजिएगा, बेटी लोग का चिंता नहीं कीजिएगा कि उनका पढ़ाई लिखाई कैसे हो। 2 लाख कमाने वाला को चिंता है, अपना बेटा को टिकट दिला के चुनाव लड़ा रहा है। तो हम लोग को भी तो चिंता करना चाहिए। और इसी चिंता के लिए वोट होता है कि हमको वोट उसको करना है जो मेरे बारे सोचे। आज देखिए हम एक नया एमएलए हैं, लेकिन आज हमको भी 2 लाख रुपए से ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपए हम सैलरी अपना भाई बहन लोग को बांट देते जो पढ़ने लिखने वाला है। किसी को एडमिशन के नाम में, किसी को रजिस्ट्रेशन के नाम में, किसी को ट्यूशन फी के नाम में। कोई पाया, आप तो देखे होंगे राज्यपाल साहब आए थे हमारे, और 110 बच्चा लोग को हम लैपटॉप वगैरह देके बांटते कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए। आप लोग रोज प्रत्येक सप्ताह 15 दिन में आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई बहन उत्तर प्रदेश खेलने जा रही थी, पैसा नहीं था, हम उसको किट खरीद के दे दिए। कोई बहन एडमिशन करना था, उसको डिप्लोमा में पैसा नहीं था, मेरे पास आई, उसको हम चेक साइन करके तुरंत दे दिए। तो हमको भी 2 लाख रुपया मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपया हम अपना भाई बहन लोग को देते पढ़ने लिखने के लिए। 50,000 तो हम लोग रखते नहीं, तो फिर चलेंगे कैसे? मेरा भी घर द्वार है। तो से जन्य मायरा मासीरा दीदीरा काकीरा ए भोटेर माने हमारे समस्या निदान। और आप देख सकते हैं कि आज अकेला विधायक है और सबका नजर हम पे। क्यों नजर है? ना हम जनता का बात करते हैं, हम जनता के बाल बच्चों के भविष्य का बात करते हैं, इसीलिए सबका नजर हम पे। आपको भी मालूम होगा, जब हम लोग आए थे चुनाव का नॉमिनेशन करने के लिए, डीसी को नोटिस जारी कर दिया, हम लोग गाड़ी के ऊपर गए थे प्रचार मैंने नॉमिनेशन करने। तो हम आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सिंहभूम जिला यानी इस सिंहभूम जिला के डीसी से पूछना चाहेंगे। पहले तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि फ्यूचर में आप कहीं डीसी से भी ऊपर जाइए, आप चीफ सेक्रेटरी बनिए। लेकिन एक सवाल जरूर उनसे हम पूछेंगे आपके माध्यम से कि आप जो IAS IPS का ट्रेनिंग लिए हैं, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी से लिए हैं या अफगानिस्तान में जाके लिए हैं? अगर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में आपने ट्रेनिंग लिया है सिंहभूम जिला के डीसी महोदय, तो हम पूरा बिहार चुनाव कैंपेन करके आ गए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। हमने पूरा झारखंड वैसा प्रचार किया, विधानसभा का चुनाव, हम पूरा लोकसभा का चुनाव में वैसा कैंपेन किए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमने स्कॉर्पियो के छत में चढ़ा नोटिस जारी किया, तो कल्पना सोरेन के नोटिस कहने जारी किए? हेमंत सोरेन रांची में चढ़े स्कॉर्पियो में, कहने नोटिस जारी किए? आज नरेंद्र मोदी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, राहुल गांधी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, कन्हैया कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव चढ़ रहे हैं खुला जीप में, कहने नोटिस जारी हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ के डीसी से पूछूंगा, आपके माध्यम से यहाँ के डीसी से पूछेंगे कि आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं या बाकी भारत के IAS IPS जो लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं, या फिर आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं? बताइएगा। या फिर ये भी बताइएगा कि राजा के कहने में ऐसा कर रहे हैं। गांधी ठीक कहते थे कि भारत आजाद होने के बाद जो IAS IPS की व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। आज देख रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है। आज ये नेताओं विधायकों के इशारे पे काम करते हैं, मंत्री और सरकारों के इशारे पे काम करते हैं। अरे डीसी साहब, हमको भी मालूम है, दलमा का पहाड़ में कोई आदिवासी रहता है तो आंख दिखाते हैं, और कोई बिल्डर घर बनाता है आप चुपचाप हो जाते हैं। हमको मालूम है आप क्या कर रहे हैं।
लेकिन हम नहीं चाहते हैं, आप नौकरी के दबाव में है, करिए, लेकिन तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जान रहा है कि लड़का गरीब का बात करता है, जान रहा है कि लड़का नौजवान का बात करता है। तो इसलिए मायरा मासिरा काकीरा आज के सभाয় আপনার নিশ্চয় করে নিয়ে নির্ণয় করে নিয়ে আপনার যে মত আছে ওইটা আমাদের কেঁচি ছাপ, আমাদের প্রত্যাশী রামদাস মুর্মু আমাদের চুনাও চিহ্ন কেঁচি নম্বর 5 আছে, আপনার আশীর্বাদ আমরা আমাকে সবাইকে দিবে এইটা অনুরোধ করতে এসেছে। আর एक बात अंत में यही बोलेंगे कि हारे या जीते आपके साथ है, आपके मुद्दों के साथ है, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, इसी सोच के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। ঠিক আছে, সবাই ভালো করে থাকবে, সবাই ভালো করে মিলেমিশে নিয়ে রইবে, এইটা আমাদের মেসেজ আপনাকে। সবাইকে জোহার, সবাইকে নমস্কার, ভালো করে থাকবে।